Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today I will discuss about something extraordinary and I will dig into the history about the idiomatic phrases and historical background. In front of you at my slide, idiomatic phrases and historical background, I have chosen something unusual rather than my lecture. That today I will tell you about the idiomatic phrases from their origin and from their history. What is the historical background of the that phrase or that idiomatic phrase? So from these phrases, we have come to know that what was the reason from where these idiomatic phrases come into being, come into existence. We will discuss about this thing in this particular lecture, and you will hear this lecture till the last slide of this presentation. So after this, it would be everything has some outcomes. So we will have learning outcome after watching this movie. After watching this video, you will be able to dig out the history of idiomatic phrases. You will get knowledge about the history and background of the idiomatic that is I am going to explore today. So come to the first slide. In front of you there would be a first slide. The slide is used big wig. This is the picture of big wig. The person have a long hairs, so meaning an important person, especially in a particular sphere. What is the origin of big wig? uh, Back in the 18th century, the most important political figure would wear the biggest wig. Hence today influential people are called big wig. So हम ये कह सकते हैं कि एक अहम शख्स ख़ास तौर पर किसी भी माशरे में, जो सोसाइटी में जो बहुत अहमियत इख्तियार करता हो पॉलिटिकली या फिर सोशली, उस आदमी को हम बिग विग कह सकते हैं। लेकिन पास्ट की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 18th सेंचुरी के अंदर जो अहम शख्स, सियासी शख्सियात होती थी और जो बहुत अहम होती थी और बाअसर होती थी, उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल करते थे। और यूजली वो जो है बड़े बड़े बाल जो है विग जैसे लगाया करते थे। इस सिम्बोलिकली जो है वो पता चलता था कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है अहम है इस माशरे के लिए और अहम पर्सनैलिटी है। तो इसलिए ये जो है बिग विग का जो है आप देखेंगे कि सामने आपके बनी हुई पिक्चर, तो ये बिग विग जो है द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स नो अडेज, तो उसको हम जो है बिग विग कहेंगे। नो jump to the next slide, that is white elephant. You look at a beautiful white elephant. What is the meaning of white elephant and how we are using in our sentence? Meaning a possession that is useless or troublesome, especially one that is expensive to maintain or difficult to dispose of. uh, what is the origin of this white elephant? The origin of white elephant were considered to be the sacred creature in the Thailand, yet they were also very hard to take care of. It is believed that the Siamese kind know the Thailanders would gift white elephant as a subtle form of punishment, since taking care of this animal would drive the reputation into the financial realm. अगर हम इसको उर्दू में देखें तो इसके एक ऐसी चीज़ को कह देते हैं, ऐसी बेकार सी चीज़ जिसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कुव्वत लगे, पैसा लगे, लेकिन उसका जो इनकम हो वो बहुत कम हो, उससे आपको कुछ ना मिले। तो ऐसी चीज़ को हम वाइट एलिफेंट कह सकते हैं। जैसा कि असल सफ़ेद हाथी थाईलैंड में जो है मुक़द्दस मखलूक समझा जाता था और इसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल काम होता था। और ये ख्याल किया जाता था कि जो थाईलैंड के लोग होते थे वो सज़ा की एक लतीफ़ शक्ल के तौर पर जो है सफ़ेद हाथी तोहफे में देते थे, और ताकि वो आदमी उसकी हाथी की जो है देखभाल करे और इस तरह उसको माली तबाही का सामना करना पड़े, यानी उसका आउटकम कोई नहीं होगा। एंड वट वुड बी द सेंटेंस? नो, द पाकिस्तान स्टील मिल हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर पाकिस्तान। अब इसका जो मीनिंग यह है कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है एक वाइट एलिफेंट बन गया, जिससे फ़ायदा कम आ रहा है लेकिन उसके ऊपर नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये वाइट एलिफेंट जो है इसकी हिस्ट्री, और ये मैंने पूरी कोशिश की आपके सामने बताने की। नेक्स्ट जो है हम इडियम पे चलते हैं, दैट इज़ बेस्ट मैन। वुड यू लाइक टू बी अ बेस्ट मैन? आप बेस्ट मैन बनना चाहते हैं। मीनिंग इसका जो है
आपने अक्सर देखो हमारे कल्चर के अंदर जो है सरबाला जो है, जिसको हम कहते हैं कुछ एरियाज़ में जो है छोटे बच्चों को बनाते हैं, लेकिन हिस्ट्री के अंदर जो ना जो आपके दूल्हे साहब का जो है पार्टनर होता है, दूल्हे साहब के साथ जो देखभाल करने के लिए, उसको जो है ना बेस्ट मैन कहते हैं। अ मेल फ्रेंड और रिलेटिव चूजन बाय द ब्राइडग्रूम टू असिस्ट हिम एट हिज वेडिंग। सो इसको हम जो है बेस्ट मैन कहते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस एडिमेटिक फ्रेज, और ये ओरिजिन क्या है? इट इज सेड दैट ड्यूरिंग द feudal डेज it was possible that the rival lord would try to break up a wedding ceremony and steal the bride for political reason. To avoid any trouble, groom would ask their best friend to stand next to them during the ceremony so they could help during the possible battle. The man standing next to the groom was named best man. उर्दू में बताना चाहूँगा कि एक मर्द दोस्त जो है, इसके मीनिंग है रिश्तेदार जिसे दूल्हे के साथ अपनी शादी में उसकी मदद के लिए जो है चुना जाता है। अब इसकी जो ओरिजिन क्या है, कहाँ से यह है? कहा जाता है कि ये जागीरदाराना दिनों में ये मुमकिन था कि एक हरीफ लॉर्ड जो है सियासी वजूहात की बना पर शादी की तकरीब को तोड़ने और दुल्हन को चुराने की कोशिश करे। किसी भी परेशानियों से बचने के लिए दूल्हा जो है उस तकरीब के दौरान जो है अपने बेहतरीन दोस्तों का इंतखाब करता है और जो उसके साथ खड़े होते हैं ताकि वो मुमकिन लड़ाई से दौरान मदद कर सकें। दूल्हा के साथ खड़े शख्स को बेहतरीन आदमी का नाम दिया गया है। इसकी ये हिस्ट्री है। दैट्स वाई most of the people said that Sirbala, and you can also say that best man. So the picture of best man and the bridegroom is there. You can feel it and they are the same as the best friend or they are. So and jump to the next slide. So the next slide would be just jump to the next slide, that is butter someone up. We usually said that buttering, flatter or otherwise ingratiate oneself. Origin, what is the origin of this? The people in ancient India used to throw balls of clarified batter at the statues of God in order to seek a favor. ओके अब इसका मतलब क्या है? इसके मीनिंग यह है कि किसी साथी के साथ चापलूसी करना या फिर दीगर अहबाब को खुश करना। ये इसकी हिस्ट्री ये है कि कदीम हिंदुस्तान के लोग आसान हासिल करने के लिए देवताओं को मुजस्मों पर साफ मक्खन के गोले फेंकते थे ताकि वो राज़ी हो सके। जैसा कि आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, इसको आप गौर से जो है देख सकते हैं। सो इसकी हिस्ट्री ये है। वाई आर यू बटरिंग मी, आप इसका सेंटेंस बन जाएगा। नो जम्प टू द नेक्स्ट स्लाइड। bury the hatchet. Bury the hatchet is meaning the end a quarrel or conflict and become a friendly. What is the origin of this idiomatic phrase? During negotiation between Puritan and the Native American, men would bury all of their weapons, making them inaccessible. Mean in Urdu, मतलब ये है कि झगड़ा ख़त्म करो और दोस्ती करो दोबारा से। अब अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री का है, प्यूरिटन और मकामी अमरीकों के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान अपने तमाम मर्दों ने अपने तमाम हथियारों को दफन कर दिए थे और वो हथियार अब उसकी जो है उन तक उनकी रसाई नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल कर जो है आप नया जर्नी शुरू कर लेते हैं। तो इस सूरत में हम जो है bury the hatchet कहते हैं। bury the hatchet जो है एंड सेंटेंस क्या होगा? लेट bury the hatchet and we should become a friend. ये भी हो सकते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया should bury the hatchet for the peace of this region. That would be the correct sentence over here. No, jump to the next slide. Next slide is crocodile tears. Meaning tears are expression of sorrow that are insincere, fake tears. What is the origin of this phrase? Written in the 14th century, a book called The Travel of Sir John Mandeville recounts a night's adventure through Asia. In the book, it says that the crocodile shed tears while eating a man they capture, even though it is factually incorrect. The phrase crocodile tears found its way into Shakespeare's work and became an idiom in the 16th century.
सिम्बोलाइजिंग इनसिंसियर ग्रीफ। कम टू द उर्दू में बात करते हैं। इसका मफहूम जो है कि आंसू या गम का इजहार जो गैर मुखलिस हो, जो कि दिखावे का हो। अगर हम देखें इसकी ओरिजिन को देखें, इसकी असलियत को देखें, तो 14वीं सदी में लिखी गई किताब द ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैडेविल जो है एक किताब थी। एशिया में एक नाइट की मुहिम जोई के ऊपर ये लिखी गई थी किताब में कहा गया था कि मगरमच्छ अपने पकड़े गए आदमी को खाते हुए आंसू बहाते हैं। अगरचे ये हकीकत में गलत है, इस हिस्ट्री को अक्सर लोग गलत समझते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि लेकिन मगरमच्छ के आंसू का फ़िक्रा एक्चुअल शेक्सपियर के काम में दाखिल हुआ है और 16वीं सदी में एक मुहावरा बन गया जो कि क्या है कि बेइबरत गम की इलामत है। Particularly, it is not clear in the history what is crocodile tears. So the historian said that it is it is deriving from the old history, and some people consider that it is coming from the 16th century in Shakespeare play. So jump to the next slide. Next slide is cats and dogs. Meanings have ran very hard, heavily. What is the origin of this phrase? This idiom has two stories that try to explain its origin. The first explanation says that the origin of this phrase comes from the Norse mythology, where cats would symbolize heavy rain and the dog were associated with the god storm, Odin. The second version says that in the 16th century England, houses had thatched roof which were one of the few places where animals were able to get warm. Sometime when it would start to rain heavily, roof would get slippery and cats and dogs would fall off, making it look like it's raining cats and dogs. अगर हम इसके उर्दू में अगर गौर व फिक्र करें तो इसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा सख्त बारिश को कहते हैं। असल में जो है इस मुहावरे की जो है दो इंटरप्रिटेशन है, दो कहानी है, उसको हम देखते हैं। दो इंटरप्रिटेशन और दो कहानियों को इस मुहावरे के ऊपर देखेंगे कि इस मुहावरे में दो कहानियाँ जो इसकी असल की वजाहत करने की कोशिश करती हैं। पहली वजाहत में ये कहा गया है कि इस जुमले में किसी इब्तदा नॉर्स के अफसानों से हुई थी, जो बिल्लियाँ शदीद बारिशों की लामत होंगी और कुत्ते जो है तूफ़ानों के खुदा ओडिन के साथ मुंसलिक थे। दूसरा जो है इसका नुस्खा जो है वो ये कहता है, दूसरी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि 16वीं सदी में इंग्लैंड में घरों की छतें थी जो उनमें चंद जगह में से एक थी जहाँ जानवर गर्म हो सकते थे। कभी कभी जब तेज़ बारिश शुरू हो जाती तो छतें फिसल जाती और बिल्लियाँ और कुत्ते गिर जाते। ऐसा लगता था कि बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही है। तो इसी वजह से जो है कैट्स एंड डॉग जो है इसको लिया गया। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, कैट्स एंड डॉग जो है हैवी रेन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जो है टोटल हमारे पास जो है ये हम कैट्स एंड डॉग की जो है जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अब जो है इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हर एक वाक्य जो होता है उसका एक मुश्किल पहलू होता है। मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? नेगेटिव occurrence may have some positive aspect. It means that if there is some negative, but there must be a positive thing if you want to search it. Origin: the expression can be traced directly from a piece of writing in 1634 by English poet John Milton. Puritan poet called Comus, a mass presented at the Ludlow Castle. He spoke of a silver lining of brightness behind a gloomy cloud, and soon afterward Milton cloud became the staple of English literature. The proverb "every cloud has a silver lining" eventually came into being in the history of 1800th century, a time of optimism and positivity in the upper class of Victorian England. इसके उर्दू के मीनिंग देखते हैं। मीनिंग जो है मनफी वकुआ, इसका मुस्बत पहलू भी हो सकता है। इसका ओरिजिन क्या है, ये असल से आई कहाँ है? ये इजहार अंग्रेज़ी के शायर जॉन मिल्टन जो कि प्यूरिटन पोएट थे 1634 में लिखे गए एक टुकड़े में कहा है, जिसे क्या कहते हैं कि a mass presented at Ludlow Castle
कॉमिस जो है जाता है, इससे एक उदास बादल के पीछे चमक चांदी ज़रूर होती है। और इसके फ़ौरन बाद ही मिल्टन के बादल अंग्रेज़ी अदब में एक अहम मकाम बन गए। कहा जाता है कि मिल्टन ने 18वीं सेंचुरी के अंदर जो है इसको बहुत लिखा। ये एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनर जो है इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है। अब जो है हम अगले जो है इडियोमेटिक फ्रेज पे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट इडियोमेटिक फ्रेज, ईट हम्बल पाई। इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ पिक्चर, यू कैन आल्सो इमेजिन इट एंड यू कैन आल्सो ईट इट। मीनिंग मेक अ हम्बल अपॉलजी and accept humiliations. So what is the origin of this? In the Middle Ages there would be a huge feast after a hunt. The lord of the manor would receive the finest piece of meat, and the ones with the lower status would eat a pie filled with the entrailed and inward, which were also known as the umbles. Those who could eat the umbles pie were considered to be the humiliated since symbolized their lower status. Because उर्दू में देखते हैं कि इट इज अटैकिंग अस अबाउट द स्टेटस। मैंने देखते हैं उर्दू में है आजी से माफ़ी मांगो और जिल्लत कबूल करो। असल जो है करून वस्ती जो है जो मिडिल एजेस की बात हो रही है में शिकार के बाद एक बहुत बड़ी दावत होती थी। जहांगीर के मालिक को गोश्त का बेहतरीन टुकड़ा मिलता था और जो लोग निचली हैसियत रखते थे वो अंतड़ियों और अंदरूनी हिस्सों पर अपनी भूख बुझाते थे, खाते थे, जिसे छीनियाँ भी कहा जाता था। और वो लोग असल में जो है बाकी बचा कुचा माल खाते थे और उसे जलील समझा जाता था क्योंकि इनकी निचली हैसियत होती थी। इट मीन ये क्लास डिस्टिंक्शन वाज देयर इन द सोसाइटी। तो सो व्हाट वुड बी ही हैज़ टू ईट हम्बल पाई आफ्टर ही डिड रॉन्ग। जिसका जो है हमने सेंटेंस भी बना दिया। तो जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कैच रेड हैंडेड। सो मीनिंग है यूज टू इंडिकेट दैट अ पर्सन हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन और just after the act of doing something wrong or illegal. Origin, what is the origin of this? There was an old law stating that if someone butchered an animal and didn't belong to him, he would only be punished if it were caught with the blood on his hand. If one was caught with the meat but his hand were clean, he would not be punished. इसकी मीनिंग को हम देखते हैं। इस बात की निशानदेही करने के लिए कि इस्तेमाल किया जाता था कि किसी शख्स को कुछ गलत या गैर कानूनी काम करते हुए उसे पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। इसका हम असल देखते हैं ओरिजिन कहाँ से आया है। ये एक पुराना कानून था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई किसी ऐसे जानवर को ज़िबा करे जो उसकी मलकियत ना था तो उसे सिर्फ इस सूरत में सज़ा दी जाएगी कि जब उसके हाथ पे खून पकड़ा जाए। अगर गोश्त के साथ पकड़ा गया तो उसके हाथ साफ होंगे तो उसको ये सज़ा नहीं दी जाएगी। अब हम जो इसके सेंटेंस की तरफ से होते हैं, द थीव वाज कॉट रेड हैंडेड लास्ट नाइट। अब हम इसका जो है सेंटेंस भी हमने बना दिया। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है लेट द बेल आउट ऑफ द बैग। अब जो है मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली or by mistake. What is the origin of this phrase? Some time ago, farmer who should pigs would bring them to the market wrapped up in a bag. Unscrupulously, ones would replace the pig with the cat, and if someone would accidentally let the cat out, their fraud would be uncovered. Meaning क्या होंगे इसके? किसी राज को लापरवाही से या गलती से जो है वो अफशा कर देना। अब जिसके देखते हैं ओरिजिन क्या है। कुछ अर्सा पहले जो किसान सूर फरोख्त करते थे उन्हें थैले में जो है बिल्ली को बाज़ार लाते थे। बदकिरदार सूर की जगह बिल्ली ले लेते और अगर कोई गलती से बिल्ली को बाहर जाने देता तो उसकी धोखाधड़ी का पर्दा फाश हो जाता। इस तरह जो है इस कहानी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड ये है। अब हम इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सेंटेंस में खुद भी आप यूज़ करें। नेक्स्ट जो है हम इस सेंटेंस को देखते हैं। स्पिल द बीन जो है व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ स्पिल द बीन्स? मीनिंग रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनअटेंशनली या इनडिसेंटली। ओरिजिन क्या है? दिस सेइंग कम फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वेयर द वोटिंग वाज डन यूजिंग बीन्स
Citizen would put a white bean into the jar of candidate they support and a black one for the candidate they don't approve of. However, a few occasions, clumsy people would spill the jar, revealing the classified information. उर्दू में हम इसकी मीनिंग को देखते हैं। खुफिया मालूमात को गैर इरादी या गैर दानिस्ता तौर पर ज़हर करना। ये कहावत कदीम यूनान से आई है, जहाँ फलियों का इस्तेमाल करते थे वोटिंग के लिए। तो कोई उम्मीदवार जो उसको वो हमायत करता है, अगर उसको वो वोट देता है तो उसकी जार में सफ़ेद फली जो है ना डाल देता है, और वो उम्मीदवार जिसको वो सपोर्ट नहीं करता उसको काली डाल देता है। लेकिन कुछ जो है ऐसे लोग जो कि शर पसंद होते हैं, वो जार को तोड़ देते हैं और पूरी की पूरी मालूमात को जो है अफशा कर देते हैं। तो हम जो है उसको कह सकते हैं स्पिल द बीन, क्या है, राज अफशा करना। हु विल स्पिल द बीन बाय टेलिंग द करप्शन ऑफ हिज बॉस। इसका हम सेंटेंस भी हमने बना लिया है। नो नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ब्रेक द आइस। What is the meaning of break the ice? Do or say something to reveal tension or get conversation going in strained situation, or when stranger meet. Origin, what is the origin of this phrase? In the old days, commercial ships would often get stuck in frozen river during winter time, and summer ships called icebreaker would come to clear a path to shore by breaking the ice. In the 17th century, people began to use the phrase to mean that to reduce tension in a social situation. उर्दू में देखते हैं इसके मतलब यह है कि तनाव को दूर करने के लिए कुछ करें, या कभी किसी कशीदा सूरत हाल को ऊपर ख़त्म करने के लिए गुफ्तगू को बढ़ाना, गुफ्तगू को आगे चलाने का कहा गया है। अब इसका ओरिजिन देखते हैं। पुराने दिनों में तजारती बहरी जहाज़ अक्सर सर्दियों के मौसम में जमे हुए दरिया में फंस जाते थे, इसलिए छोटे बहरी जहाज़ जिन्हें उसको ब्रेकर कहा जाता था, बर्फ़ को तोड़कर साहिल के दनस्ता रास्ते साफ़ करते थे, तमाम रास्ते साफ़ करते थे। 17वीं सदी में लोगों ने इस जुमले को माशरती सूरत हाल में तनाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया। सो ब्रेक द आइस, ऑल वर सिटिंग इन द क्लास, अली broke the ice by asking a question. So इसका सेंटेंस भी हमने बना दिया। नो jump to the next slide, that is very important, that is once in a blue moon. What is the meaning of once in a blue moon? Meaning is very rarely, बहुत often come. Or what is the origin of this phrase? This one is rather obvious, since a blue moon is a astronomical phenomenon that is visible once every 2.7 years, even though the moon actually looks more gray than blue. According to NASA, it might appear to be blue when it is affected by the volcanic eruptions or forest fires due to the oils in smoke. इसके मीनिंग है बहुत कम तादाद में नज़र आना, बहुत तादाद में कम होना। असल इसकी हिस्ट्री क्या है ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ब्लू मून जो है एक फल्कियाती जो है रुझान है, जो कि 2.7 साल में एक बार नज़र आता है। अगरचे चाँद दर हकीकत नीले रंग से ज़्यादा सरमाई नज़र आता है। नासा के मुताबिक जब ये आतिश शाम फटते हैं या धुएं में तेल की वजह से जंगल की आग से मुतासर होता है, तो ये नीले रंग का दिखाई दे सकता है। ये हमारे जो है कोटेशन जो है वंस इन अ ब्लू मून। सो आई कैन यूज़ इन द सेंटेंस, okay, I visit my native village once in a blue moon. Jump to the next slide, that is beat about the bush. What is the meaning of this phrase? Beat about the bush, discuss a matter without coming to the point. It means that you are talking about irrelevant things. Although you are talking, but you are talking irrelevant thing. Okay, what is the origin of this phrase? Beating about the bush is actually an action performed while hunting, driving birds and other animals out into the open. After this was done, others would then catch the animal. उर्दू में इसको देखते हैं। किसी मामले पर बात किए बगैर बात करना या गैर ज़रूरी बात करना, असल बात पे ना आना। इसकी जो हम आप तारीख़ को देखते हैं, हिस्ट्री को, झाड़ी के बारे में माना दर हकीकत शिकार करने, परिंदों और दीगर जानवरों को खुले में भगाने के दौरान अंजाम दिया जाने वाला अमल है।
इसके बाद दूसरे जानवरों को पकड़ने की बजाय करेंगे। इट मीन दैट अगर ये है कि हम जो है गैर ज़रूरी बात जो है उसके ऊपर बात नहीं करते, गैर ज़रूरी बात पे बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो है हम असल बात के ऊपर टू द पॉइंट जो है हम बात को नहीं करते। तो ये आज की जो है हमारी स्लाइड थी। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यू विल आल्सो कीप इन टच विद मी फॉर गेटिंग न्यू स्लाइड्स टू इंक्रीज योर नॉलेज, and I think that would be a great thing for you, that you are learning such kind of thing, innovative thing, and unusual thing which is usually considered unusual. So thank you so much. Assalamu alaikum.